Hello everyone, welcome to Aptly Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis, and for today we have a special topic on discussion that is about the Covaxin. And Covaxin is India's first indigenous COVID-19 vaccine, and this is developed by Bharat Biotech, and it has successfully entered into the human trial. So there are some important points for you as in civil services aspirant to know, and there are many other important points that has to known about the vaccine, how the human trial could happen. So everything we'll discuss in detail. So stay tuned till end of this video. So first thing first, that this we have come a milestone where we have achieved the first indigenous COVID-19 vaccine trial, and the Covaxin is the first candidate which has received the approval for the in-human trial. And the approval has been given by the Central Drug Standard Control Organization. We call it CITSCO. So basically, they have granted the Bharat Biotech. This is a reputed company. I'll tell you detail about the Bharat Biotech in the later. So they will conduct the human trial and the clinical trial for the Covaxin. So this is the news, and this is again very important from prelims perspective. For prelims, I feel a question can be directly asked, not in this, but the mechanism how the human trial is going to be followed up. So first thing first, who is developing the vaccine? So as you know that the Covaxin has been developed by the company called Bharat Biotech, and it is in the collaboration with the ICMR, the Indian Council for Medical Research, and the National Institute of Virology, Pune. So these are the organizations that are involved in developing the vaccine. So these names, this organization is very important. Now, the Covaxin is an inactive vaccine that is created from the strain of the infectious SARS-CoV-2 virus. This is COVID-19 only. So we call it SARS-CoV-2 or coronavirus or COVID-19. They are the same name. Now moving ahead, on what basis the permission was granted? See, when it comes to the trial permissions, there are some norms and conditions which is being given, and accordingly the DCGI and other apex body give the approval. So the permission was granted after the company has submitted. The company means the Bharat Biotech. They have submitted the preclinical studies of the vaccine that was demonstrated in the safety and immune response. So what they did initially, they have the trial and they gone through the safety and the immune responses that was there in the vaccine. So accordingly, they have submitted their basically the findings of their preclinical results. Now it is an inactive vaccine which is manufactured by the company, that is basically they have some levels called biosafety level 3, that is called BSL3, and in the high contaminated facility located in the Hyderabad, Telangana, right? So basically this is something which they are taking the utmost care in the human trial. And talking about the phase 1 and phase 2 of the clinical trial, this will start across the country in the July. So there are the stages of the clinical trial which has to be followed, and in this month only they will start the human trial, right? First there's a trial of the drugs, then after the trial is successful, then we move on to the human trials. Now talking about the Central Drug Standard Control Organization, that is CITSCO, you need to understand about this as well, because a question can be directly asked about this organization. So what is it? The Central Drug Authority for Discharging Function. It is a authority with discharge function related, and the power is being provided under the Drugs and Cosmetic Acts. So this body is something which has its power from the Drugs and Cosmetic Act, right? उसके अलावा आपके लिए जो जानना जरूरी है that this is a regulatory body and in the Indian pharmaceutical and the medical devices. तो ये इसकी logo है. This will help you to understand. Now it function as a regulation and control over the import of drugs. तो जितनी भी import of drugs है, approval of drugs है, जो clinical trial के लिए जाती हैं, उनमें ये basically इनकी assent चाहिए होती है. Now it approves the certain licenses of the central licensing basic approving authority to exercise by the CITSCO headquarter. तो जो भी हमारी central license approving authority है, and they're exercised by the CITSCO headquarter. So this is the main body which is regarding in relation to the discharge of functions related to the import and approval of the new clinical drugs. Now talking about the stages before the vaccine get approval, तो इंडिया में बहुत सारे stages हैं, 3 stages में चीज़ों को approve की जाती है. So basically talking about the all 3 stages, we have phase 1, phase 2 and phase 3, and in certain countries formally the regulatory approval is required to undertake by any of these studies. तो जो phase 1 के जो clinical जो studies हैं, they are carried out in the initial testing of the vaccine. कुछ small लोगों पे जो healthy adult हैं, जो volunteer होते हैं, उन पे test की जाती है.
और जो टेस्ट का पर्पस होता है टू चेक द प्रॉपर्टी ऑफ द वैक्सीन, किस तरह से क्या प्रॉपर्टी है वैक्सीन की, उसकी टॉलरेबिलिटी किस तरह से है, कितनी अप्रोप्रिएट है, और जो क्लिनिकल जो लेबोरेटरी में जो फार्मालॉजिकल जो पैरामीटर्स हैं वो फॉलोअप जो की गई है, जिस पर वो बनाई गई है वो फॉलोअप हो रही है यानी। और जो फेज 1 है दैट इज़ अ प्राइमरी कंसर्न विद द सेफ्टी, तो मोस्टली ये सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर के चेक की जाती है कि इसके कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं है इस वैक्सीन को लेकर के, राइट। नाउ द सेकेंड स्टेज इज द फेज 2, जहाँ पे स्टडीज इन्वॉल्व होती है लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट पे। तो इट प्रोवाइड द प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन अबाउट द वैक्सीन एवेबिलिटी टू प्रोड्यूस द डिजायर इफेक्ट। तो वैक्सीन का जो पर्पस है, जो मेन मोटिव है जिसके लिए उसको बनाया गया है, यूजुअली अगर हम बात करें जिसको इम्यूनोजेनिसिटी कहते हैं, उस चीज़ को जो टारगेटेड पॉपुलेशन है, जो वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ साथ जो सेफ्टी नीड्स है, जो जनरल सेफ्टी है, उसमें क्या आउटकम्स आए हैं, तो यहाँ से जो हमारी है वो रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें हो जाती है ना। उसके बाद जो लास्ट स्टेज आती है वो है एक्सटेंसिव फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल 3। दिस रिक्वायर्ड द फुल एक्सेस ऑफ द प्रोटेक्टिव एफिकेसी एंड द सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन, कि फाइनली इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, लोगों को जो बेसिकली जो नॉर्मल सिटीजन है, जो एक पेशेंट्स हैं, क्या उनको ये वैक्सीन दी जा सकती है, वो फेज 3 के बाद जो ट्रायल्स हैं उनके बाद ही अप्रूव होती है। और फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल इज अ पाइवोटल स्टडी विच हैज़ अ डिसीजन वेदर द लाइसेंस, जो लाइसेंस दी जानी है उसके लिए सफिशिएंट डेटा है या नहीं, उन्होंने पूरी चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट किया है कि नहीं, और जो न्यू प्रोडक्ट बनेगी वो कितनी इफेक्टिव होगी जिस पर्पज़ के लिए वो बनाई गई है, राइट। सो द फाइनल स्टेज इज इन द स्टेज फेज 3, आफ्टर विच द फाइनल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स टेक प्लेस। Now about Bharat Biotech, as you know that this company is manufacturing, so you need to know about this Bharat Biotech as well. कई सारे other competitive examination में भी इसके बारे में पूछे जा सकते हैं। तो Bharat Biotech is basically creating an innovation vaccine regarding the biotherapeutic around the world. और इनको जो मैन्युफैक्चरिंग अप्रूवल्स है वो UFDA से मिले हैं, KFDA और WHO से। So they get the approval from 3 important organization. और जो भारत बायोटेक है, they have achieved significant research and development investment including the breakout through the world first, कुछ इन्होंने विश्व में सबसे पहली चीज़ों को डिस्कवर किया है, उसमें आती है हेपेटाइटिस वैक्सीन पहला, दूसरा रोटा वैक्सीन को भी इन्होंने जब नेचुरल एटेन्यूएटेड फॉर्म में जो स्टेन्स को डेवलप किया था, वर्ल्ड में पहली कंपनी थी। उसके बाद थायराइड के लिए कॉन्जुगेट वैक्सीन, दिस वाज आल्सो डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक। एंड इन द पास्ट Bharat maker, basically biotech maker, have manufactured H1N1 vaccine during the swine flu in the outbreak. So this company has a very reputed, basically impression of creating the number of vaccine which was developed topmost among the world. और रोटा वैक्सीन की अगर बात करें तो रोटा वायरस की ये जो बेसिकली जो डिजीज है उसके लिए इन्होंने रोटा वैक भी भारत बायोटेक ने ही डेवलप किया। So this is the image where they have developed 3 billion doses of basically Rotavac, which was supplied to Government of India. And these are the other list of vaccines which is developed by Bharat Biotech at present. So HNVac, Genvac जो है, Rotavac है. So देख सकते हो these are some of the important drugs which was recently in the news, and this was developed by the Bharat Biotech company, right? Now other Indian companies that are involved in the COVID-19 vaccines, कुछ इसके अलावा भी और कंपनीज हैं जो कि इन्वॉल्व है, और वो किस स्टेज पे वो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में कुछ और इम्पॉर्टेंट फर्म्स हैं जो कोविड-19 के लिए काम कर रहे हैं, जैसे जाइडस कैडिला है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, और ये लोग पिछले महीने से काम कर रहे हैं, और एक पैनिशिया बायोटेक है। ये 3 कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी इसमें लगी हुई हैं। तो जो पैनिशिया है दैट इज स्टिल इन द प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, वो भी प्री क्लिनिकल ट्रायल्स पे है, और जो जाइडस है और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उन्होंने अपने कुछ क्लिनिकल जो प्री क्लिनिकल ट्रायल है उसको पूरा किया है, बट अभी भी उनको जो CDS को जो अप्रूवल की ज़रूरत होती है ह्यूमन ट्रायल के लिए, वो अभी तक उन्होंने अप्लाई नहीं किया है और उनको अभी तक अप्रूवल नहीं दी गई है। सो दीज आर द कंपनीज विच आर अलाइंड फॉर द ह्यूमन ट्रायल, बट ओनली इनिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव भारत बायोटेक टू कम अप विद द ह्यूमन ट्रायल। नाउ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके अलावा कुछ और न्यूज़ जो हैं आज के न्यूज़पेपर में वो मैं आपको बता दूं। तो फर्स्ट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये भी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। 2 बटरफ्लाइज स्पीसीज इन द इंडिया लिस्ट, एंड रिफॉर्मिंग इंडियाज डिजिटल पॉलिसी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल जू अथॉरिटी। आपको ये न्यूज़ आज के हिंदू में मिल जाएगी। एंड टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यूज़, दिस इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर एंड प्रीलिम्स एग्जामिनर्स। तो जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट मैं समझता हूँ प्रीलिम्स के लिए डायरेक्ट सवाल इससे पूछे जा सकते हैं।
तो रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है सेंट्रल जू अथॉरिटी को। और जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई है उसमें कुछ मेंबर्स को इंक्लूड की गई है। सो द फर्स्ट इज द डायरेक्टर ऑफ स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ही विल बी द अनदर मेंबर। The senior principal scientist of the CSIR, Center for Cellular and Molecular Biology, CCMB भी जिसको कहते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस चेयरमैन के अलावे जो CZ होगी, CZ बेसिकली सेंट्रल जू अथॉरिटी जो होगी, उसमें 10 और मेंबर्स होंगे जो कि बेसिकली, और एक मेंबर सेक्रेटरी होंगे जो कि पूरे इसके कॉम्पोजिशन को ये करेंगे, राइट। सो दीज आर द टोटल कॉम्पोजिशन ऑफ द सेंट्रल जू अथॉरिटी। ना बात करें फंक्शंस क्या है सेंट्रल जू अथॉरिटी की, तो ये जो अथॉरिटी है दैट विल ले डाउन द गाइडलाइंस एंड प्रिस्क्राइब द रूल अंडर द एनिमल दैट मे बी ट्रांसफर्ड अमंग द जू नेशनली एंड इंटरनेशनली। तो जिस चीज़ों को भी, अगर कोई भी एनिमल को जूस को इधर से ट्रांसफर करने, सो दे नीड द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नाउ रीसेंट गाइडलाइन की बात करें, जो CZ की जो गाइडलाइन थी, तो 1 जून से ही उन्होंने बेसिकली अलाउ किया कि जो जूज हैं दे हैव टू टेक अ कॉल ऑन ओपनिंग द विजिटर्स। अभी अलाउ नहीं करना है, बेसिकली गवर्नमेंट ने दे आर टेकिंग मोर प्रिकॉशंस टू ओपन इट, बट कुछ लिमिटेड क्राइटेरियाज के साथ ओपन की गई है। एंड इन मे कंसर्न वे रेज्ड अबाउट द एनिमल वेदर द बिग कैट्स कुड बी अ सोर्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ COVID-19 और रिपोर्ट हैव इमर्ज्ड दैट द टाइगर इन द न्यूयॉर्क ब्रॉन्क्स जू टेस्टिंग हैव पॉजिटिव। तो न्यूयॉर्क में वहाँ पे जो एक टाइगर है जू में, उनको पॉजिटिव पाया गया था। सो इंडिया में भी ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दे आर टेकिंग अ प्रिकॉशनरी मेजर्स। एंड फॉलोइंग दैट CZ has issued the advisory for enhanced surveillance of the big cats basically, right, because it was already found in the New York in the United States. ना अब बात करें जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है, इसके बारे में थोड़ा सा आपके लिए जानना ज़रूरी है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, दिस इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी विच इज़ चेयर्ड बाय द मिनिस्टर, जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर होते हैं वो इसको चेयर करते हैं। एंड ही टेक्स ऑन द रेगुलेशन ऑफ जूज अक्रॉस द कंट्री, पूरे इंडिया में जितनी भी जूज हैं दैट इज़ रेगुलेटेड बाय CZA. Now the authorities laid down the guideline and prescribe rule under the animal which may be transferred among the zoo nationally and internationally. So मैंने आपको पहले बताया। नाउ दूसरी टॉपिक दैट इज 2 बटरफ्लाई स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। तो इन्वायरमेंट से आज 2 टॉपिक हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और बात करें जनरल स्टडीज़ में, मेंस में, तो ये जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में कुछ हद तक इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट दिस इज मोर स्पेसिफिक टू द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो 2 वेराइटी है जो बेसिकली फाइंड की गई है बटरफ्लाइज की। जो लिडोपेरेटिस्ट होते हैं, बेसिकली जो बटरफ्लाई की स्टडीज़ करते हैं, उन्होंने फाइंड किया है 2 स्पीसीज इन द अरुणाचल प्रदेश रीजन, राइट। जो फर्स्ट है दैट इज कॉल्ड स्ट्रीप्ड हेयर स्ट्रीक, और जो दूसरा है दैट इज कॉल्ड इल्यूसिव प्रिंस, राइट। सो दीज आर द 2 important बेसिकली the butterfly which has been found. तो स्ट्रिप्स हेयर स्ट्रिक्स हैं, दिस वाज द फर्स्ट रिकॉर्डेड बाय द जापानीज एंटोमोलॉजिस्ट इन द हेवान प्रोविंसेस ऑफ द चाइना। तो पहले उसको वहाँ नोट किया गया था। ना जो दूसरी है इल्यूसिव प्रिंस, दैट वाज अ वियतनामी कनेक्शन। तो कोई भी जो चीज़ें फाइंड की गई है अरुणाचल प्रदेश में, तो ऐसा नहीं है कि वो इंडिजिनस है, उसका कहीं ना कहीं रिलेशन फॉरेन कंट्रीज से है। तो जो इल्यूसिव प्रिंस थी उसकी जो कनेक्शन वो वियतनामीज कनेक्शन बताई जा रही है। एंड दिस इज फेमिलियर टू द ब्लैक प्रिंस दैट इज फाउंड इन द ईस्टर्न हिमालयस। तो फाइंडिंग के मुताबिक जो 2 बटरफ्लाइज है दे हैव बीन पब्लिश्ड इन द एडिशन ऑफ द बायोनोट्स जर्नल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नल है। तो इसके बारे में पब्लिकेशन भी की जा चुकी है। And India has now 327 species, from which 181 2015. तो पहले 2015 में हमारे पास 1318 स्पीसीज थी, अब ये 1327 हो चुकी हैं। Now this is the bird which has been found. You can see this images, the beautiful bird with a camouflage of the other colors. नाउ इंडिकेशन ऑफ द रिच बायोडाइवर्सिटी जो फाउंड की गई है, उसमें एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो अरुणाचल प्रदेश में जो चीज़ें पाई गई है, सो दैट शोज कि वहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी एंड स्टेट हैज़ अ पोटेंशियल टू इंक्रीज द टूरिज्म। तो ये जो सरकार को आने वाले टाइम में मदद करेगा, इट विल हेल्प टू फोकस द अदर पार्ट ऑफ टूरिज्म। और यहाँ पे ज़रूरत ये बताई गई है कि सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी साइंटिस्ट हैं उनको वॉलंटरली सपोर्ट करे, ताकि इस तरह के जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं उसको आगे बढ़ाया जा सके। और अगर रिसर्च एक्टिविटीज़ आगे बढ़ेगी तो उस शहर में जो इको टूरिज्म है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट होगा, राइट। सो दिस विल अल्टीमेटली इंक्रीज द स्टेट रेवेन्यूज इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म।
और जो रिकॉर्डिंग्स बेसिकली जो फाइंड की गई है 2 बटरफ्लाइज दैट फॉलो द रीडिस्कवरी ऑफ द असम केलबैक, एक नॉन वर्मस स्नेक थी जिसको बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में 129 ईयर्स के बाद रिपोर्ट किया गया था, right? So this is the coming from the diversity of the basically the flora and fauna which is present in the अरुणाचल प्रदेश रीजन। तो इस तरह के जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद करें, जिस टाइम पे महाराष्ट्र ने एक बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया था, उस टाइम पे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में बटरफ्लाई पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नाउ द अदर टॉपिक इज रिफॉर्मिंग इंडिया डिजिटल पॉलिसी। यू कैन फाइंड दिस आर्टिकल, दिस एडिटोरियल इन द हिंदू। तो यहाँ पे जो डिजिटल पॉलिसी है उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सके हैं उसके बारे में बात की गई है। तो जो कोविड-19 की जो सिचुएशन जिस तरह से कंटिन्यू हो रही है ग्लोबली, तो जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है वो तो दिख ही रही है, बट दिस टाइम जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो एफडीआई है, वो भी काफ़ी इंटेंसिफाई हुई है। बट प्रेजेंट सिचुएशन में ज़रूरी है कि कुछ रिवर्स एक्शन लिए जाएँ और जो डिजिटल सर्विसेज हैं उसके थ्रू वी कैन एक्सपेक्ट कि सब कुछ जो ट्रेंड है डिजिटल सर्विस में वो इम्प्रूव करें। अभी मैंने आपको जैसे बताया जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो हमारी एफडीआई है, उसमें भी काफ़ी डाउनफॉल हुआ है। एंड इंडिया इज़ इन द आइडियल डेस्टिनेशन जहाँ पे एफडीआई के थ्रू जो डिजिटल सर्विसेज हैं उसको एक पोटेंशियली इनोवेट किया जा सकता है एंड वी कैन होम ग्रो द स्टार्टअप। बाकी इंडिया में जो बेसिकली जितने भी टेक्नोक्रेट्स हैं, जो टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको हम डिजिटल सर्विस के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं और इस पेंडेमिक के टाइम में आगे बढ़ा सकते हैं, राइट? तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेन डेवलपमेंट, उन्होंने बेसिकली रिलीज किया था अपने डेटा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के में। उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि जो एफडीआई है एशियन कंट्रीज में वो ड्रॉप करेगी बाय 45%। So this is what has been predicted by the global agencies, and country need to attract the FDI and advances in becoming the $5 trillion economy. तो इंडिया ने बेसिकली इस बार बजट में भी ये चीज़ें बताई थी कि वी नीड टू हैव अ टारगेट ऑफ $5 trillion इकोनॉमी, जहाँ पे ग्रोथ रेट जो हमें चाहिए थी वो 9 से 11% के आसपास चाहिए थे। बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 दिस टारगेट सीम्स टू बी अनअचीवेबल, और आने वाले समय में देखना होगा सरकार इसके लिए कैसे स्ट्रैटेजिकली प्लान करती है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल सर्विसेज बताए गए हैं कि जो डिजिटल सर्विसेज हैं दे हैव बिकम क्रिटिकल इन द 21st सेंचुरी, राइट? और जो डिजिटल सर्विसेज हैं वो एक बहुत सारे गैप्स को फिल कर सकती है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो ग्लोबल इमरजेंसी लेवल्स पे हो। इन सारी चीज़ों को मोड ऑफ कॉमर्स के थ्रू बेसिकली डिजिटल सर्विसेज के थ्रू ओवरकम किया जा सकता है, राइट? एंड डिजिटल सर्विसेज एनेबल द एक्सेस ऑफ डिलीवरी, जो वाइड एरे ऑफ प्रोडक्ट्स है, जो मल्टी सेक्टर्स में इस तरह की चीज़ें होती हैं, हेल्थ केयर हो, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, यहाँ पे डिजिटल सर्विसेज एज एक्टिंग एज अ बूम, राइट? तो डिजिटल सर्विसेज इज द ओनली वे आउट इन द पेंडेमिक, चाहे इंडिया के लिए डोमेस्टिकली बात की जाए या ग्लोबली बात की जाए, राइट? नाउ मेजर्स फॉर कंसिडरेशन, क्या क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए उसके बारे में बात की गई है। तो करेंटली देयर आर 3 पेंडिंग रिफॉर्म्स, बेसिकली इसमें बात की गई है कि 3 इंपॉर्टेंट जो ट्रेजेक्टरी है डिजिटल सर्विसेज पे उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। इसके साथ सरकार को क्लैरिटी लेके आनी चाहिए कि क्या ये बिल आगे टेबल्ड होगी, ये लॉ बनेगी या नहीं बनेगी। एक प्रॉपर ई कॉमर्स पॉलिसी के साथ आने की ज़रूरत है ताकि जो हमारी डिजिटल ग्रोथ है जो उसको आगे बढ़ाया जा सके। एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अमेंडमेंट जो है उसके साथ भी सरकार को आगे आने की ज़रूरत है ताकि जो डिजिटल मोड से जो आगे ट्रेड करना या जो भी चीज़ें बेसिकली फॉलो अप करनी है, क्योंकि आपने देखा होगा बेसिकली जो ट्रेड वॉर चल रही है यूएस और चाइना के बीच में, तो उसका इम्पैक्ट भी ग्लोबली बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। Now the approaches in this regulatory reform seems to emphasis on focus on protecting the domestic market, जो हमारी अपनी डोमेस्टिक मार्केट है, जो डोमेस्टिक कंपनीज है, उन सबको चीज़ों को कैसे प्रायोरिटाइज किया जाए, जो डेटा की जो सिक्योरिटी है, जो सेफ्टी है, जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो इम्प्लीमेंट की जाए एज अ लॉ, ताकि एक स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट का भी प्रोविजन किया जा सके। नाउ वे फॉरवर्ड क्या हो सकती है? इंडिया को ज़रूरत है कि अभी इस टाइम पे चीज़ों को रिज्यूम करे, एक नई आर्किटेक्चर बनाए जहाँ पे जो डिजिटल सर्विसेज हैं उसके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको एक्सप्लोर किया जा सके, और जो नई इन्वेस्टमेंट है थ्रू एफडीआई दिस कैन बी अट्रैक्टेड, राइट? तो एफडीआई को हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। और अभी G20 की जो समिट होनी है 2022 में, तो पोस्ट कोविड जो इंटरनेशनल कॉपरेशन होगी वहाँ पे एक डिजिटल स्फीयर बनने की चांसेस है, एक डिजिटल गवर्नेंस भी उभर के आएगी। सो दैट शुड बी द टॉप प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दे शुड टेक इट एज अ टॉप प्रायोरिटी इनिशिएटिव्स, राइट? एंड इट इज़ अ टाइम फॉर इंडिया टू टेक एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ट्रू ग्लू, तो बेसिकली जो हमारी जो ग्लोबल लीडरशिप है
उसके तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी इस्टैब्लिश सम ऑफ द गुड गवर्नेंस डिजिटल स्पेयर, जहाँ पे आने वाले समय में एक इंटरनेशनल फोरम पे वी कुड हैव अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, राइट। सो दिस वाज ऑल द आर्टिकल सेइंग। और मैं बता दूं कि हमने एक डिजिटल बेसिकली डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट किया है। दिस इज टेलीग्राम चैनल। अब हर सुबह यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगी और अपने आंसर अब हमें 6 PM तक भेज सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक भी मिल जाएंगे, राइट। सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। And we have launched prelims mock test series where 25 tests are there. So this is very important that you practice more and more question before you jump into the actual prelims examination. So practice help you to build more confidence and get you through the clarity of the questions, right? तो आप इसको avail कर सकते हैं mock test series को। And I sincerely thank you for listening to this video. Do not forget to subscribe our Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube, and do not forget to hit a like button on this video, right? And if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.